Hello, friends and my dear students. I hope you all are fine and studying well. Those who are new, kindly like and subscribe this channel. सो इन लास्ट क्लास पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मोशन क्या है, गति क्या है. सो आज इस क्लास में हम उसके कुछ टाइप्स जो पढ़ने रह गए थे, टुडे वी विल स्टडी ऑल दोस मोशन. So first of all, today we will discuss about circulatory motion. You can easily identify by looking at this all the objects, that is the motion of the fan, the motion of a top. So top is spinning, that is a rotatory motion, and a rotatory motion in a fan, because they have a axis, means they are moving at one fixed point in a सर्कुलर वे. एक सर्कल में ये लोग घूम रहे हैं, ठीक है. वृत्तीय घूर्णन बोलते हैं, ठीक है, वृत्तीय गति. सो वी विल रिमेंबर द डेफिनेशन. द मोशन ऑफ अ बॉडी. So the motion of a body along a circular path is known as a circulatory motion. यदि कोई वस्तु एक सर्कुलेटरी मीन्स एक सर्कल में अगर वह घूर्णन कर रही है, वह गति कर रही है, तो उस प्रकार उस टाइप की मोशन, दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलेटरी मोशन. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ऑसिलेटरी मोशन. मीन्स दोलन. This is a pendulum. Motion of pendulum come under the oscillatory motion, dolan gati. Okay, to and fro. Can you see my pen? From this end to that end, this coming to and fro. This motion is to and fro. So a motion of a swing you might have been enjoying in childhood. बचपन में आप लोगों ने तो enjoy किया ही होगा एक झूले की. तो इस झूले की जो गति है, जो सामने और पीछे, ओके, आगे पीछे, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो. So this kind of motion is called oscillatory motion. So we will remember the definition, that is the to and fro motion of an object. It means the position is known as oscillatory motion. Alright, example is very clear, the motion of a pendulum and motion of a swing. How many of you have used this guitar? I think that most of you have used. If not, you might have been seen in Indian Idol, okay, in other musical performance. You might have been seen that they are using this musical instruments. This is guitar, okay. So guitar, when we are playing guitar, so particular parts of the guitar only create a vibratory motion, okay. There will be vibration while touching the string. दिस वेरी टाइटली फिटेड, ओके. इस स्ट्रिंग को बहुत ही टाइटली इसको फिट किया जाता है. जब उसमें हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, मीन्स उसको टच करते हैं किसी दूसरे मेटेलिक ऑब्जेक्ट से या हाथ से ही, तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, और उस मोशन को, इस पर्टिकुलर मोशन को हम लोग वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं. सो देयर इज अनदर टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. ये वाइब्रेटरी मोशन क्या है, एक दूसरा प्रकार है, ठीक है. किसका? तो ऑसिलेटरी मोशन का, दोलन गति का एक दूसरा प्रकार, एक दूसरा रूप हम लोग बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन. मीन्स कंपन गति, which is certain part of the object, only certain part, not this, okay. The certain part of the objects move to and fro in a fixed pattern about its mean position. ये जो पोजीशन है, इसको जो इसकी जो परिस्थिति, इसकी जो स्थिति है, उसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, पैटर्न पे क्या होगा, एक फिक्स्ड पैटर्न पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ सूदिंग, दैट म्यूजिकल, दैट साउंड विल बी क्रिएटेड, ओके. दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन. सो वाइब्रेटरी मोशन ऑफ दिस स्ट्रिंग, वायोलिन, गिटार, सितार, दिस और प्लक्ड प्रोड्यूस वाइब्रेटरी मोशन. जब उसके वायर्स को हम प्लग करते हैं, मीन्स उसको टच करते हैं, ठीक है, उसको अपनी तरफ पुल करते हैं, तो दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन. Next we will study periodic motion. Most of you are very familiar with this because we have studied in class 5 and 6 also. What is this?
the when earth revolve around the sun, okay, the movement of the earth. So this is a periodic. In certain period of time only there will be winter season, after some time in certain period of time there will be summer season and all, or day and night. Okay, a motion which gets repeated after a regular interval of time is known as periodic motion. Means regular interval means 24 hours, after 12 hours there will be afternoon, again afternoon means noon time, then evening 6 o'clock there will be sunset, 5 o'clock there will be sunrise, like that. means in certain period of time, वो जो टाइम उसको दिया गया है, मीन्स जो टाइम 5 घंटे के अंदर अगर सूरज उगना है तो उसका उगने का टाइम मीन्स द सन राइजिंग टाइम विल बी फिक्स. फॉर एग्जाम्पल रिंगिंग ऑफ द बेल, हमारे स्कूल की जो बेल है, जो घंटी है, 35 मिनट्स में जो बेल रिंग करना मीन्स उतने ही पीरियड में वो रिंग करेगी. इफ देर इज सम एक्सटर्नल प्रॉब्लम सो इट मे नॉट रिंग, अदरवाइज इट विल बी रिंग इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. Swinging pendulum of a wall clock, this also will ring at a certain period of time. So this kind of motion is called periodic motion. So we will remember the definition, that is a motion in which gets repeated after a regular interval of time is known as periodic motion. So the earth around the sun, the revolution of earth around the sun, swinging of pendulum of a wall clock and the heartbeat of a normal person, this all come under a periodic motion. Next we will study non-periodic motion. By the name itself you can easily identify the motion which doesn't takes place at a regular interval of time, that is called non-periodic motion. ठीक है, अगर कोई मोशन एक रेगुलर पैटर्न पे, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर वो अकर नहीं हो रहा है तो उस पर्टिकुलर मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पेरियोडिक मोशन. सो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. मोशन ऑफ आवर लेग वाइल वॉकिंग, जब हम वॉक करते हैं, कभी तिरछे, कभी सामने, कभी पीछे, कभी लड़खड़ा के गिरते भी है, तो वो जो मोशन है वो पेरियोडिक मोशन नहीं कहलाएगा. एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इन अ मूविंग व्हीकल, जब हम साइकिल चलाते हैं या कार चलाते हैं, कोई भी व्हीकल, मूविंग व्हीकल, तो उसमें हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, वो तो किसी सर्टेन पीरियड ऑफ और सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम नहीं होता है. जब हमारी ज़रूरत महसूस होती है तो हम उसमें ब्रेक लगाते हैं. ऑलराइट, अब बाकी कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं. नेक्स्ट, रैंडम मोशन, when an object in a motion has no specific path, उसमें कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं है. जैसे कि हमारे जो रिवोल्यूशन, जो अर्थ के रिवोल्यूशन का जो पर्टिकुलर एक पाथ है, एक रास्ता है, उस तरह उसका कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं है. सडनली चेंजेस इट्स डायरेक्शन, और वो जो अपनी दिशा को अचानक मोड़ देगा. ठीक है, तो इसे हम लोग रैंडम मोशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ फ्लाइंग काइट, जैसे हम पतंग उड़ाते हैं तो उसका जो मोशन है, अचानक हम किसी दूसरे डायरेक्शन पे, हवा के विपरीत डायरेक्शन पे हम लोग उसको क्या करते हैं, पुल कर देते हैं. मोशन ऑफ फुटबॉल, हॉकी, ये सारे आएंगे रैंडम मोशन में. सब मोशन में है, लेकिन इनका जो मोशन है एक निश्चित दिशा में नहीं इसको इंगित किया गया है, इसको एक निश्चित दिशा नहीं दी गई है. अगर कोई बॉलर, अगर कोई आपका फ्रेंड आपकी तरफ बॉलिंग करेगा तो आप बैट से उसकी दिशा क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं. फुटबॉल अगर आपकी तरफ आता है तो आप उसको गोलकीपर की तरफ पास कर देते हैं. नेक्स्ट, मल्टीपल मोशन, इस महिला को देखिए, ये अपनी तरफ एक बल लगा के इसको अपनी तरफ गति प्रदान कर रही है, मोशन इसको दे रही है. और ये जो बाकेट आ रहा है एक रेखीय गति में, मतलब एक सीधी रेखा में ऊपर की तरह आ रहा है. ठीक है, सो हम लोग इसको पढ़ेंगे. सम टाइम अ मूविंग ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स 2 और मोर टाइप्स ऑफ मोशन साइमल्टेनियसली, एक साथ ही एक से अधिक क्या होता है, उसमें गति होती है. तो सच अ मोशन इज नॉन एज मल्टीपल मोशन और मिक्स्ड मोशन. तो इस प्रकार के जो मोशन होते हैं, गति होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल मोशन या मिक्स्ड, मिश्रित गति. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल, जब हम लोग कुएं से पानी निकालते हैं, द पुली ऑन विच द रोप रन्स हैज़ अ रोटेटरी मोशन, उसमें कौन सा मोशन है, एक रोटेटरी मोशन है. ऑन विच मोशन वाइल द बकेट एंड रोप हैव ट्रांसलेटरी मोशन, और ये रोप के पास कौन सा मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन. So now we have completed the motion.
So next we will study about the pendulum and rest other perspective on this chapter in the next video. Have a good day, like and subscribe the channel.